So, good morning, students. Today, as I discussed yesterday in last section, that we have covered the what is the aptitude and what is the need of the aptitude. For the brief info today, I'm going to discuss something that is the quantity aptitude skills, and topic 1, that is the percentage. Topic 1, percentage. So, next is, as I told you yesterday in the last session, we have discussed what is the role of aptitude and what is the role of aptitude and why it is important for the any campus recruitment test or any competitive exams. So for the brief info that this is my introduction, the brief introduction. My name is Ritesh Malviya. I have 12-year experience of the training and placement as well as the training students in the competitive exams. So today the today topic is percentage. So percentage, students. I hope everyone is aware about the percentage. Percentage एक ऐसा वर्ड है जो सबसे पहले आपने कब सुना होगा. परसेंटेज सबसे पहले आपने तब सुना होगा जब आप स्कूल गए होगे और आपका एक रिपोर्ट कार्ड बना होगा. जैसे ही आपका एक रिपोर्ट कार्ड बनता है तो सबसे पहले ये क्वेश्चन उठता है कि हाउ मच परसेंट माई चिल्ड्रन, माई स्टूडेंट आर माई सेल्फ स्कोर्ड फॉर पर्टिकुलर एग्जाम्स. द क्वेश्चन इज दिस कि जब भी हम परसेंटेज की बात करते हैं तो परसेंटेज इट मीन्स आउट ऑफ 100. Whenever we talk about out of 100 means whenever you are putting, you are competing, if you are giving some exams, you will get some numbers, you will score some numbers, and that scores that will convert in your percentage. So percentage, it means out of 100. So today I have a topic, I have a content on the percentage, how we will calculate the percentage, how percentage perform any aptitude test. So aptitude test percentage is a vital topic. Why I chosen is a first in video, because percentage is a vital topic. Vital topic, it means जो कुछ भी स्टार्ट होता है वो परसेंटेज से स्टार्ट होता है. When we talk about the logical reasoning, when we talk about the data interpretation, when we talk about the any calculations, so everywhere percentage is essential. तो percentage को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमारे लिए पहला एजेंडा है कि percentage कैलकुलेट कैसे करते हैं, percentage होता कैसे है. Many of you have aware about the percentage calculation कैसे किया जाता है. So to this first is fraction to percentage conversion. जब हम बात करें कि fraction से percentage को convert कैसे करते हैं, तो fraction से percentage को convert करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है. So how to convert the fraction into percent. Into percent, it means to convert the fraction into percent multiplied by 100. Simple. This is a very simple method कि आपको कोई भी फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट विल बिकम अ परसेंटेज फिगर. जैसे किसी ने भी सपोज हम कहते हैं 1/4, 1/2, 1/3. If 1/2, if you talk about 1/2 it means 50%. If you say 1/4 it is 25%. If I say 1/3 is 33.33%. It's all about the percentage. When we want to convert fraction into percentage, we have to multiply the fraction with 100 and it becomes the percentage, right? So next is फ्रैक्शन टू परसेंटेज. फ्रैक्शन से परसेंटेज में हम कैसे कन्वर्ट करें. फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना चाहिए. यदि आपके पास फ्रैक्शन दिया हुआ है सो उसको आप परसेंट में कैसे करेंगे, या परसेंटेज टू फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे. तो 60% को यदि हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 60% को यदि हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इट मींस कि 60 1/100 दैट इज 3/5. 60 1/100 इज इक्वल टू 60 1/100. परसेंट का मीन होता है, दैट इज परसेंटेज मीन्स 1/100. Whenever you see the symbol of the percentage, it means that is 1/100. Whenever you see the symbol of percentage means the symbol is this and this symbol says 1/100. So परसेंटेज को कन्वर्ट करना है हमें किसमें, यदि हमें परसेंटेज को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, सो 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 3/5. नेक्स्ट इज द परसेंटेज ऑफ अ गिवन नंबर. यदि हमें परसेंट कैलकुलेशन करना है तो कैसे करेंगे. जब परसेंटेज या कैलकुलेशन की बात आती है तो ये बोल देते हैं जनरलाइज वे में हम वी टॉक अबाउट कि 20% ऑफ अ नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे.
20% ऑफ नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे? यदि कोई नंबर है, स्कोर है, या किसी का परसेंटेज मार्जिन है, सो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? दैट इज दिस। तो x% ऑफ द गिवन नंबर इज इक्वल टू x बाई 100 इंटू n। सपोज करिए 70% ऑफ 200 निकालना है, तो 7। Okay, so we were talking about the percentage calculation. So percentage calculation, it means there is 5,000. 5,000 is a number, and we want to calculate the 10% of any number. It means we just have to cut the last digit 0, and it will be a 10%. It will become a 10%. And if we want to calculate the 1%, it means we write 500 is, suppose first is 500 will considered as the 100%. 5,000 will be a 100%. So 10% will be 500, and if we cut 1 2 zeros, it becomes 1%. Simple. So 1%, it means 5,000 is 100%, and 500 is 10%, and 50 is 1%. So this is the way of the calculation. This is the way of the calculating the percentage. It means अभी हम लोग कह रहे थे कि 5,000 के लिए हमने लास्ट डिजिट को कट कर दिया। तो अब यहाँ जीरो है, तो जीरो को कट करने से डजंट मैटर, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है उसमें। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट दी यदि कोई नंबर जब 5,222, सो 222 ऐसा कोई नंबर है और उसका यदि हमें 10% कैलकुलेट करना है, तो वी जस्ट हैव टू शिफ्ट द डेसिमल 1 प्लेस लेफ्ट। जैसे ही हमने 1 प्लेस लेफ्ट किया, इसका ये इट बिकम्स अ 10%। इट बिकम्स 10%, right? And if we want to calculate the 1%, so 1% is equal to 52.20. Just shift one another place of the decimal to the left. That is called 52%, and the numbers becomes 52.22 will be the 1%. So this is the way of the calculation of a 1% and the 10%. And if you are able to calculate 1% and 10%, it means you are able to calculate any percentage. कुछ भी calculate कर सकते हैं, toughest से toughest. Suppose करिए we want to discuss, suppose करिए 5,000 है, 5,000 का मुझे निकालना है 89%. I have to calculate 89%. So there is a two method of the calculation. First is a conventional method, जो हम लोग पढ़ते आए हैं, कि जो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था, उस फॉर्मूले के बेस पे हमें कैलकुलेट करना है 89%. तो सिंपली राइट 89% ऑफ 5,000. 89% of 5,000. तो 89% of 5,000 का मीनिंग ये हुआ कि 89 will be the 89 into percentage means 1 by 100. As I told you, percentage means 1 by 100 of is equal to multiply, and then 5,000 will be the 5,000 as it is. So what we'll do, this will be the 89 into 50 will be your final answer. 89 into 50 will be your final answer. So in this way, this is the percentage calculation. Here you have to put the 89 into 50 in multiplication, simple multiplication you have to do it. But यदि मैं इसी questions को with my formula use करें या shortcut use करना चाहें, तो shortcut that's very easy. Suppose करिए 5,000 है, सपोज इज द 5,000. तो 5,000 का मैंने जो ट्रिक बताई है, 5,000 का 10% कितना होता है? इट इज 500. 500 का यदि 89 इज नियर बाय दी 90%. 89 इज नियर बाय दी 90%. सो इसका यदि मुझे 10% इफ आई नो, सो 10% इफ आई नो, एंड इफ मल्टीप्लाई 10 इज टू विद 9, दैट इज 90%. सिमिलरली यदि मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो इट बिकम्स दी 4,500. सो वी गॉट 90% ऑफ अ नंबर. जैसे हमको मिल गया 90% ऑफ अ नंबर मिल गया. सो 1% विल बी व्हाट? 1% विल बी, दिस इज द 1% इज 50. तो 4,500 minus 50 will be your answer, and the 50 and 4,450. 4,450 will be the 89% of a number. 4,450. In this way, we also get the 4,450.
50. So this is the calculative method and this is the simplest method. Simplest method में आपको करना क्या था? Simplest method में आपको कुछ भी नहीं करना था. सिंपल से आपने assume करना था कि मुझे कोई नंबर है, उस नंबर का मुझे 10% कैलकुलेट करना है और जिस नंबर तक मुझे पहुंचना है उस नंबर तक का हम 90%, 80%, 70% जो भी नंबर्स निकालने हैं उस नंबर्स तक लाके हम उसको क्लियर कर सकते हैं. Now you got the concept how to calculating any percentage. Fine. So in this way we are able to calculate any numbers percentages. अब ये एक सिंपल नंबर था. सपोज करो कि अभी मैंने आपको ट्रिक बताया कि कैलकुलेशन 1%, 10%, 1% और 10% से कैलकुलेशन से आपको क्या मिलता है, आपको किसी भी नंबर तक पहुंच सकते हैं. यदि मुझे 79 पहुंचना है तो 79 का मुझे ब्रेकअप चाहिए, 69 चाहिए तो मुझे ब्रेकअप चाहिए, 99 चाहिए तो मुझे ब्रेकअप चाहिए. ब्रेकअप इन दी फॉर्म ऑफ परसेंटेज. तो ब्रेकअप होगा इसका कि यदि हम 80% निकाल दें उसमें से 1% को माइनस कर दें तो हमें 79 मिल जाएगा. सिमिलरली 70% में से यदि हमने 1% माइनस कर दिया तो हमें 69 मिल जाएगा. सिमिलरली यदि 100 में से मैंने 1% निकाल दिया तो हमें 99% मिल जाएगा. सो द थिंग इज कि ये कैलकुलेशन जो है, ये कैलकुलेशन इट बिकम्स इजी व्हेन वी टॉक अबाउट इन द फॉर्म ऑफ 10 and 2. यदि किसी नंबर्स का सपोज करो 6000 एक नंबर है, इस 6000 एक नंबर का मुझे इस 6000 इस नंबर का मुझे क्या निकालना है, 21% निकालना है. 21%. 6000 ऑफ नंबर का मुझे 21% निकालना है. So 6000 ऑफ नंबर का 21% निकालने के लिए मुझे what will I do? I'll simply I calculate first 10%. देखिए दो चीजें चलती हैं. Frankly speaking, if I talk about कि मैं आपको बहुत ही क्लियरली बता दूं, किसी भी नंबर का, नंबर को हम लेते हैं सेंटर में, that is 6000. Fine, that is 6000. Again 0, 0 and 0. 6000. दो मेथड हैं. सपोज करो 21% कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं. कौन कौन से दो मेथड हैं? एक है आपका ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल जो आपने स्कूल्स में सीखा था, और दूसरा होता है आपका ट्रिकी मेथड जो मैंने आपको सिखाया है, ट्रिक्स. फर्स्ट इज ट्रेडिशनल मेथड. ट्रेडिशनल मेथड की जब हम लोग बात करते हैं, सो ट्रेडिशनल का मतलब ये होता है कि आई राइट हियर 21 into 1/100 into the number is 6000. We have to calculate 6000. This one 21%, 0 से 0 कट गया, यहाँ से यहाँ बचा 60. So 21 into 60 will be your answer. So 6 1 is 6, 6 2 is 12 and 0. 1260 is your answer. 21% of 6000 is the conventional method. एक हो गया परसेंटेज को कैलकुलेट करने का तरीका. अब ट्रिक्स में जाते हैं. यदि हम ट्रिक्स में जाते हैं तो बात करते हैं कि ट्रिक्स में कैसे कैलकुलेशन करते हैं. So 21% it means it is a combination of 10 plus 10 plus 1. Right? 10 plus 10 plus 1. 10%, 10% and 1%. So 10% तो मुझे सिंपली पता चल रहा है कि 6000 का मैंने एक बार 10 कट कर दिया तो ये आपका हो गया 10%. जैसे ही आपका ये 10% होता है, सो 10% फिर 10% जोड़ लिया हमने इसमें, 600, 600, 1200. अब इसका 1% होगा तो 6000 का यदि मुझे 1% निकालना है तो 10 कट किया 60 आया, इट बिकम 60. सो टोटल विल बी अ 0, 6, 0, 6 and 12. So 1260. Both the results are same, but calculation is easy in that way. This is a percentage calculation. वेरी सिंपल मेथड से हमने आपको कैलकुलेट करना सिखाया कि परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो दिस वे वी कैन कैलकुलेट एनीथिंग इन द परसेंटेज. तो आज बात करने वाले थे कि परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं. दिस मेथड से आप बड़े से बड़े नंबर का भी निकाल सकते हैं, 10% एंड 12%. बड़े से बड़े नंबर का भी निकाल. सपोज कर यू हैव अ नंबर ऑफ 999999 एंड 40. सपोज करिए आपके पास इतना बड़ा नंबर है, तो हमें क्या करना होगा, इसका भी हमें कोई भी परसेंटेज कैलकुलेट करना हो, कोई भी नंबर हो, से 6,90,000 4,800, 6,90,000 4,800 का यदि मुझे 10% निकालना है, सो दिस सिंपल, दिस इज द 10%, दिस इज द 1%, वी कैन कैलकुलेट.
यदि कोई नंबर्स पूरे ही डिजिट्स में है, 5 5 5 5 5 है, सो व्हाट विल डू, एवरी नंबर्स कैरी द डेसिमल एट द लास्ट प्लेस, दैट यू नो। लास्ट प्लेस पे रहता है डेसिमल, आपको क्या शिफ्टिंग करनी है, जैसे आपको 10% कैलकुलेट करना है तो आपने करना क्या है, इस डेसिमल को उठा के एक लेफ्ट शिफ्ट कर देना है, दैट इज 55 पॉइंट, सॉरी 1234.5, this is the 10%. When we talk about the 1%, तो 1% it means कि आपको एक डिजिट और शिफ्ट कर देना है, 555.5 and 5. This is the 1%, 10%. तो 10% और 1% को निकालना बहुत आसान हो गया। अब आपको जब भी कोई कैलकुलेट करना होगा 12, 22%, 23%, 79%, 78%, सो आपको उस 70%, 79% को ही रीअरेंज करके 10%, 1% के मल्टीप्लिकेशन के थ्रू वी कैन सॉल्व इट। ओके, सो इन दिस वे वी कैन solve any kind of the percentage problems. Now I come on to the PDF, that is a content I prepared for you. That content, it covers everything. So we are coming on the content file, open this is the content file, and the content file says what is the percentage. When we talk about the percentage, so what is the basic definition of the utility of percentage? Percentage, it means whenever you talk about anything out of 100, that is called percentage. Example, 20%, 30% of the, if this student score 20 marks in the out of maximum 30 marks, so what is the percentage? As I told you in earlier session, that is कि आपने सबसे पहले स्कोर परसेंटेज का नाम सुना होगा तो वो स्कोरिंग के नाम पे सुना होगा, या स्कूल सब गए होंगे, रिपोर्ट कार्ड आपने अटेंड किया होगा, रिपोर्ट कार्ड जब आपने लिया होगा तो उस टाइम आपने सोचा होगा कि परसेंटेज कैसे कैलकुलेट किया है। तो परसेंटेज सीधी सी बात है, यदि आपके 420 मार्क्स आपने स्कोर किया आउट ऑफ 600, तो 420 अपॉन 600 इंटू 100, दैट इज द परसेंटेज। तो आपको परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए सीधी सी बात है कि परसेंटेज कैसे कैलकुलेट किया। मैंने आपको कन्वर्जन भी अर्लियर पीपीटीज में बता दिया कि परसेंटेज को फ्रैक्शन से परसेंट कन्वर्ट करने के लिए फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए फ्रैक्शन को सीधे सीधे आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, और यदि आपको किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में करना है तो 1/100 से मल्टीप्लाई करना है। दैट इज अ सिंपल थिंग। अब हम लोग बात करते हैं, the question is कि I have one question कि there is something, परसेंटेज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। अब हम लोग बैक करते हैं, वापस बोर्ड पे आते हैं। वापस बोर्ड पे आते हैं, और बोर्ड पे हमने समझा कि परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होता है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज, there are two person A, there are two person A and person B. Person A and person B is getting some salary. So A is getting 25% more than B. यदि A को B से 25% सैलरी ज्यादा मिलती है, A को B से 25% सैलरी ज्यादा मिलती है, तो B को A से कितनी सैलरी कम मिलती है, कितने परसेंट सैलरी कम मिलती है। Another way, if you talk about if A is getting 25% more than salary of B, so how much salary B is getting with comparison with the A? A से B की सैलरी कितने परसेंट है। Many of the students कहते हैं कि यदि A की सैलरी B से ज्यादा है और 25% ज्यादा है, it means A की सैलरी B से ज्यादा है और 25% ज्यादा है, इट मींस B की सैलरी A की सैलरी से 25% कम है। दिस इज द नॉर्मल फिनोमेना, जैसे कि आप सब समझते हैं या हम लोग इनिशियली समझते थे। तो क्या ऐसा होता है, यदि A की सैलरी B की सैलरी से 25% ज्यादा है, तो इसका यह मतलब नहीं हुआ कि A की सैलरी B की सैलरी से 25% ज्यादा तो है, लेकिन B की सैलरी A की सैलरी से 25% कम नहीं है। When we talk about the percentage, तो ये कैलकुलेशन फिट नहीं बैठता है। ये कैलकुलेशन तब फिट बैठता है जब हम बात करें कि A के पास B से 200 रुपए ज्यादा है या 25 रुपए ज्यादा है, और B के पास A से 25 रुपए कम है, तो दैट इज पॉसिबल। When we talk about the रुपीज के बारे में हम जब बात करेंगे, तो ये एक फंक्शनली ट्रू है कि A के पास B से 25 रुपए ज्यादा है और B के पास A से 25 रुपए कम है। इट इज फंक्शनली ट्रू।
ये हम मान सकते हैं, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द परसेंटेज इट इज नॉट ट्रू। अब हम लोग बात करेंगे कि ए की सैलरी बी से 25% ज्यादा है, तो बी की सैलरी ए की से कितने परसेंट कम है, इस बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो डिस्कशन में ये बात होती है कि लेट्स सपोज बी इज हैविंग 100 रुपीज, बी की सैलरी 100 रुपए है, तो ए की सैलरी ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी, 125 रुपए। ओके, सो अब हम लोग बात करेंगे द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इज चेंज परसेंटेज। चेंज परसेंट, अब चेंज परसेंट की बात करते हैं तो चेंज मींस व्हाट, चेंज परसेंटेज की बात करें तो चेंज इज इक्वल टू चेंज अपॉन पहले हम लोग चेंज परसेंटेज पढ़ लेते हैं फिर बात करते हैं कि कैसे। ओके, चेंज परसेंटेज इज इक्वल टू चेंज upon original, change upon original into 100. Change percent is equal to change upon original into 100. Change upon original it means यदि किसी की सैलरी 1000 रुपए थी और 1000 रुपए से यदि उसको उसकी नई सैलरी 1200 रुपए हो गई, सो इट मीन्स कि उसमें जो चेंज आया वो आया 200 रुपए का। तो 200 अपॉन ओरिजिनल कितनी थी, 1200 into 1000 into 100. So we will calculate 1 2 1 2 3 3, that is 20%. तो क्या हुआ कि हमने कैलकुलेट किया कि चेंज परसेंट। अब हम बात करते हैं चेंज परसेंट के लिए, तो कई बार आपको क्वेश्चंस आएंगे इंक्रीज परसेंट, डिक्रीज परसेंट, तो आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है कि चेंज इनटू चेंज अपॉन ओरिजिनल, चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100, दैट इज अ चेंज परसेंट। या ये हो सकता है इंक्रीज परसेंट हो या डिक्रीज परसेंट हो, कुछ भी हो, इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज कुछ भी हो सकता है। तो आपको बस चेंज वैल्यू रखना है और नीचे ओरिजिनल वैल्यू रखना है और इनटू 100 निकालना है, तो दैट इज द 20%। आपको जब भी 1000 से 1200 का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो भी ये रूल लग सकता है। और व्हेन वी टॉक अबाउट दी 1000 से किसी की सैलरी यदि 800 रुपए हो जा रही है तो दोनों का जो चेंज आया वो भी सेम आया 20%। तो 20% में बी अ प्लस इंक्रीमेंट या 20% में भी अ डिक्रीमेंट। तो ये आपको डिपेंड करना है कि क्वेश्चन कैसा आता है, उस क्वेश्चन के हिसाब से हम उसको कैलकुलेट करते हैं कि चेंज परसेंट क्या है, चेंज परसेंट पॉजिटिव है या चेंज परसेंट नेगेटिव है। गॉट इट? ओके, तो नेक्स्ट इज, सो वी वर टॉकिंग अबाउट माय क्वेश्चन इज ए की सैलरी बी की सैलरी से 25% ज्यादा है, तो बी की सैलरी ए की सैलरी से कितने परसेंट कम है। वो अगेन हम उस क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज ए एंड बी की सैलरी। ए की सैलरी बी की सैलरी से ज्यादा है 25%, सो बी की सैलरी ए की सैलरी से कितने परसेंट कम है। तो हमने सपोज किया था कि बी की सैलरी सपोज करिए 100 रुपीज है, तो ए की सैलरी ऑटोमेटिकली एज पर द क्वेश्चन विल बी 125। ओके, सो नाउ द चेंज इज 25, चेंज ऑफ सैलरी इज 25। सो व्हाट विल डू, हमने कैलकुलेट करना है चेंज अपॉन ओरिजिनल। ओरिजिनल किससे कंपेयर करना है, ए से। 125 into 100, right? So 25 125, it is 1 by 5, 1 by 5 and 5 by 100 by 5, that will be a 20%। सो ये क्वेश्चन ये सही हुआ कि ए की सैलरी बी से 25% ज्यादा है, तो बी की सैलरी ए से 20% कम है। नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ए की सैलरी बी से 25% ज्यादा है तो बी की सैलरी ए की सैलरी से 25% कम होगी। ये पॉसिबल नहीं है। व्हेन वी टॉक अबाउट द परसेंटेज, तो परसेंटेज में चेंजेस डिफरेंट आते हैं। ये परसेंटेज आउट ऑफ 100 की बात करते हैं। पॉज। So in this way we have compared A salaries and B salaries and what is the percentage changes and change percent formula. So now I am going to take the very practical problem जो कि परसेंटेज में हमारे पास हमेशा ही आती रहती है। एवरीबडी नोज कि पेट्रोल के प्राइस डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, तो पेट्रोल के प्राइस यदि बढ़ते जा रहे हैं और यदि आपके पास एक बजट है, उस बजट के ड्यूरेशन में ही आपको काम करना है, तो आप कैसे करेंगे। सपोज करो बजट क्या होता है, यदि आप एज ए स्टूडेंट आपको पेरेंट्स ने 1000 रुपीज एज ए पेट्रोल एक्सपेंसेस दे दिया, लेकिन हर महीने आपको 1000 रुपीज एज ए पेट्रोल एक्सपेंसेस मिलते हैं, तो 1000 रुपीज का जो पेट्रोल एक्सपेंसेस है, अरे सर कट कट कट। Okay, so in this way we have कंसिडर्ड कि ए की सैलरी बी की सैलरी से कितने परसेंट ज्यादा है, तो बी की सैलरी ए की सैलरी से कितने परसेंट कम है। ये हमने आज एनालाइज कर लिया इन अमाउंट
अमाउंट मे बी अ सेम बट द परसेंटेज की फॉर्म में जब हम बात करेंगे तो दोनों में चेंजेस अलग आते हैं। अमाउंट तो सिंपल सी बात है कि अमाउंट मेरी ए के पास बी से 10 रुपए ज़्यादा है तो बी के पास ए से 10 रुपए कम है, इस अमाउंट की बात करेंगे। लेकिन जब हम परसेंटेज की बात करेंगे तो परसेंटेज कभी भी इक्वल नहीं होते हैं। परसेंटेज डिपेंड करते हैं कि किसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि बी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि किससे कितनी सैलरी किसकी कम है। नाउ इट्स वेरी जेन्युइन प्रॉब्लम आज हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कि एवरीबडी नोज कि नाउअडेज पेट्रोल के प्राइसेस डे बाय डेज बढ़ते जा रहे हैं। अब जब पेट्रोल के प्राइस जब बढ़ते जा रहे हैं तो हमें क्या देखना होता है, दो चीजें वी आर कंसिडरिंग, पेट्रोल की प्राइस एज वेल एज उसका कंजम्पशन। यदि आप एज अ स्टूडेंट हो तो आपको एक रेगुलर बजट मिलता है मंथ का कि आपको 1000 रुपीज का बजट है, उसमें आपको पेट्रोल भरवाना है आपकी बाइक या स्कूटी में। तो अब 1000 का पेट्रोल भरवाना है। अब नाउअडेज अचानक से 10% का इंक्रीमेंट आ गया पेट्रोल में या 20% का इंक्रीमेंट आ गया। सो 20% या 10% का इंक्रीमेंट यदि पेट्रोल के प्राइस में आ गया तो आपको यदि आपका एक्सपेंडिचर मेंटेन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। तो कंजम्पशन कितना कम करना पड़ेगा, इट इज द मेन प्रॉब्लम। तो उसके लिए हमने एक डिसाइड किया कि कैसे कैलकुलेट करें कि कितना कंजम्पशन कम करें। तो सिंपल सा ये प्रॉब्लम्स कई बार आपको मिलेगा, घर की हाउस होल्ड चीज़ों के प्राइस बढ़ जाते हैं। जैसे आपके घर में शुगर आती है, शुगर के प्राइस अचानक से बढ़ गए तो आपने यदि बजट को, मॉम को बजट यदि कंट्रोल करना है, सो व्हाट शी डू, शी विल कट डाउन द सम कंजम्पशंस। तो वो कंजम्पशंस कम कर देंगे क्योंकि उनको बजट मेंटेन करना है। एक बहुत ऐसी नॉर्मल सा एग्जांपल हमने लिया था पेट्रोल का कि पेट्रोल के प्राइस सपोज करिए यदि 20% हाइक हो गया या 25% पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, पेट्रोल का प्राइस 25% बढ़ गया, तो हाउ मच कंजम्पशन शुड वी रिड्यूस टू मेंटेन द एक्सपेंडिचर, हाउ मच कंजम्पशन शुड वी रिड्यूस टू मेंटेन द एक्सपेंडिचर, बिकॉज बजट तो हमारे पास सेम है। तो बजट निकलता कैसे एक्सपेंसेस कैसे निकलते हैं, बजट कैसे निकलता है, P into C is equal to E. P into C is equal to E means this is the price and this is the consumption and total is expenditure. तो प्राइस एंड कंजम्पशंस का हम यदि एक्सपेंडिचर निकालते हैं तो यदि पेट्रोल की प्राइस आज की डेट में 25% बढ़ गए हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, पेट्रोल की प्राइस 25% बढ़ गए हैं तो हमें कंजम्पशन रिड्यूस करना पड़ेगा। तो सपोज करिए इनिशियल वाज द 100p, योर परसेंटेज of price of is 100%, that is 100p now, and the consumption is 100c. आप फुल प्राइस में खरीदते थे और फुल कंजम्पशन करते थे, दैट इज 100p into 100c, राइट। अब जब हम बात करेंगे कि ये आपके प्रीवियस थे, सो वी कैन कंसिडर P1 एंड C1। नाउ अब जो नया बन के आएगा वो क्या होगा, नया होगा दैट इज 100 P2 and new is K, we don't know, right? So 100 की जगह अब कितना बढ़ गया है कंजम्पशन, आपका कितना प्राइस कितना बढ़ गया है, तो प्राइस बढ़ गया है 125। So it is P2. So we can say if we are comparing from the P 100p तो इसका हो जाएगा P2 is equal to what? So P into C is equal to expenditure. First thing, price into consumption is equal to expenditure. Initial was the P1 into C1 is equal to P2 into C2. एक ये फॉर्मूला हम जनरेट कर सकते हैं, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, दिस इज अ कंसेप्ट कि पहले जो प्राइस था उसका जो कंजम्पशन का मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्सपेंडिचर मिलता है, और दूसरा प्राइस और दूसरे कंजम्पशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी एक्सपेंडिचर मिलेगा। वाई दिस मस्ट बी इवन एंड दिस मस्ट बी E2, हियर E1 एंड E2 इज मस्ट बी इक्वल, बिकॉज क्यों, E1 E2 आपस में बराबर होने चाहिए क्योंकि हमें एक्सपेंडिचर को मेंटेन करना है, दैट्स वाई E1 इज इक्वल टू E2। अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि प्राइस बढ़ गए, सपोज करिए पेट्रोल के प्राइस 125p हो गया, यहाँ पे कंजम्पशन जो था वो इनिशियल प्राइस, सपोज इनिशियल प्राइस क्या था, इनिशियल प्राइस था 100p, फुल प्राइस इनटू फुल कंजम्पशन 100c, नाउ इट बिकम्स 125p and consumption we don't know, that we considered as K. So K will be what?
K will be 100P into 100C upon 125P. अब P से P कैंसिल हो गया, ये हो गया 4 और ये हो गया 5, 25 से डिवाइड कर दिया, 5 को 100 से डिवाइड किया तो 20, 5 से डिवाइड किया तो 20C into 4 that is 80C. तो now your consumption becomes 80, K is equal to 80C. K is equal to 80C. K is equal to 80C means अब आपका जो कंजम्पशन है वो 100C की जगह 80C होना चाहिए. सो इट मींस यू हैव टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ 20% टू मेंटेन द एक्सपेंडिचर. यू हैव टू डिक्रीज द consumption or by 20% to maintain the expenditure. It is a form of the calculating percentage. Okay, so in this way I'm going to cover my last session of the percentage. Last part of this session is theory of percentage. It means we have covered this one, this much we have covered. A की सैलरी B की सैलरी ज़्यादा है. इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंटेज की हमने बात कर ली है. इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंटेज में हमने देखा है कि इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल इन 200, जैसे मैंने आपको चेंज परसेंट का बताया था, चेंज अपॉन ओरिजिनल इन 200, आप उसको इंक्रीज और डिक्रीज में कन्वर्ट कर सकते हो. तो इंक्रीज और डिक्रीज में जब हम कन्वर्ट करते हैं इसको, तो ये आपको मिलता है इंक्रीज percent upon increase into original into 100 and decrease is equal to decrease upon original into 100. This change percent equal to change upon original into 100. Next is, अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दिया, प्राइस ऑफ ओल्ड प्राइस एंड ओल्ड क्वांटिटी, न्यू प्राइस न्यू क्वांटिटी, जिससे हमने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाते हैं और कंजम्पशन हमें कम करना पड़ता है. तो पेट्रोल के प्राइस बढ़ने से कंजम्पशन को कितना कम करना पड़ता है. दिस इज आवर डिस्कशन. ओके, ये अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. Now we were talking about the परसेंटेज एरर. एक क्वेश्चन आपको मिलेगा परसेंटेज एरर का. तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए हमें कभी क्या करना पड़ता है. परसेंटेज एरर का एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे. आई विल सॉल्व दी सम डिफरेंट काइंड ऑफ द क्वेश्चंस. जब परसेंटेज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं एक हर वैरायटी के क्वेश्चंस नेक्स्ट सेशंस में आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि परसेंटेज की वर्कशीट सॉल्व करेंगे. परसेंटेज की वर्कशीट में आपको डिफरेंट काइंड ऑफ द प्रॉब्लम्स मिलेंगी कि क्या होता है. तो एक और कंसेप्ट होता है कि एरर परसेंटेज निकालना है. एरर परसेंटेज मीन्स क्या होता है, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100. ये क्वेश्चन होता है, जनरली एप्टीट्यूड में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप एक ग्रोसरी की दुकान पे जाते हैं और वहां पे आपने 1 kg शुगर परचेस करनी गई. अब 1 kg शुगर की जगह ग्रोसरी शॉप वाले ने आपको 900 ग्राम शुगर दे दी, तो 900 ग्राम शुगर दे दी. तो बताइए कि उस ग्रोसरी वाले शॉप ऑनर का कितना प्रॉफिट हो गया. सो उन्होंने तो उस टाइम पे हमें यूज करना पड़ेगा द एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100. तो एरर कितना होता है, द एरर 100 ग्राम की एरर करी, ट्रू वैल्यू इज 900 into 100. दैट इज द परसेंटेज एरर परसेंटेज कैलकुलेशन. इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था, प्राइस इनटू कंजम्पशन इनटू इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन, दैट इज एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन. आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे अभी थ्योरी में कि यदि किसी रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल की हमने क्या कर ली, लेंथ बढ़ा ली और हमने उसके ब्रेथ को डिक्रीज कर दिया. तो बताइए कि उसके एरिया में चेंजेस क्या आएगा, या क्या परसेंटेज, यदि हमें एरिया को मेंटेन करना है और लेंथ को बढ़ा दी तो ब्रेथ को कितने परसेंट से कम करना पड़ेगा. तो दैट इज द सेम क्वेश्चन कि लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू, वही फॉर्मूला लगा के हम कर सकते हैं कि हम उसको कैसे सॉल्व करना है. अगली बात है, द मेन थिंग है इसकी परसेंटेज की जब बात आती है तो परसेंटेज के कैलकुलेशन में बच्चे सबसे आपको कुछ परसेंट मैथमेटिक्स में परसेंटेज में कुछ फिगर्स को आपको याद करना पड़ेगा टू मेक फास्ट कैलकुलेशन. यदि आपको फास्ट कैलकुलेशन करना है तो आपको कुछ चीजों को याद करना पड़ेगा. दैट इज जैसे कि यदि 1/1 करते हैं दैट इज 100%. यदि एक पिज्जा लेते हैं, उस पिज्जा का फुल पार्ट देखते हैं तो दैट इज 1/1 इज 100%.
यदि हमने उसको 20 से कट कर दिया, उसके टू पार्ट्स कर दिए, इट मींस एवरीवन विल गेट द 50%। इफ उसके हमने 3 पार्ट्स कर दिए तो एवरीवन विल गेट द 33.33%। एंड यदि हमने उसके 4 पार्ट कर दिए तो उसमें हम देखेंगे कि दैट इज 25%। यदि एक पिज्जा होता है उसके यदि हमने 4 बराबर टुकड़े करे तो इट मींस कि वहां हमें देखने को मिलता है कि एवरीवन विल गेट द 25%। तो आपको यहां पे ये नंबर्स को याद करना पड़ेगा कि नंबर्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, और नंबर कैलकुलेशन के लिए आपको ये टेबल याद करनी पड़ेगी। Okay, fine. So in this way we are completing our theory session of the percentage. Next session में आपको मिलेंगे परसेंटेज की प्रॉब्लम की वर्कशीट्स को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वर्कशीट्स के हर टाइप की प्रॉब्लम्स, जितने भी परसेंटेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं वो मैं आपको कवर करूंगा। सो नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।